MCQs on monopoly and monopolistic competition. In my before videos, I have discussed almost all the market structures in detail. Now this is the objective question answer video, especially for the UGC NET aspirants as well as the non-UGC NET aspirants, because this video is going to let you know that where do you stand in the market structure. ये मैंने जो questions इकट्ठे करे हैं बहुत डिटेल और इम्पॉर्टेंट questions में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से लिए हैं, जिससे कि जो भी टॉपिक आपका गलत होगा यू विल गेट टू नो कि कहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्चुअल नॉलेज में कमी एंड यू कैन गेट ओवर इट. सो लेट्स गेट इन. एंड बिफोर आई स्टार्ट अगेन आई वुड जस्ट से कि हर क्वेश्चन पे आप वीडियो पॉज करिएगा 5 सेकेंड, अपना आंसर गेस करिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन. सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट? इनमें से कौन सा विशेषताएं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की हैं? ऑप्शन नंबर ए, an industry with significant barriers to entry and a single supplier. Option number B, a highly concentrated market with just a few interdependent firms. A highly competitive market with slightly differentiated products. A highly competitive market where firms are price takers. So I'll say जिसको मार्केट्स अच्छे से आती हैं वो ये भी रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक फीचर का तो इसमें से एक ऑप्शन है, बट जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी किस मार्केट के हैं. सो आई एम एज्यूमिंग अब तक आपने अपना आंसर पॉज करके गेस कर लिया है. गेटिंग ऑन. ऑप्शन नंबर ए, एन इंडस्ट्री विथ सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री एंड ए सिंगल सप्लायर. सिंगल सप्लायर से नाम पता चल रहा है मोनोपोली. ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता बिकॉज हमसे पूछा गया है मोनोपोलिस्टिक. ऑप्शन नंबर बी, अ हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट विद जस्ट अ फ्यू interdependent. These both words go for oligopoly. So not even this. A highly competitive market with slightly differentiated products. Now this is the word which goes for monopolistic. Monopolistic की अगर आपने वीडियो देखी है, समझा हुआ चैप्टर, तो इसी वर्ड से आप समझ जाओगे, बिकॉज इन द फीचर्स आई हैव सेड बिफोर दैट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इज़ द मेन फीचर, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. So probably this is the answer. Option number D, a highly competitive market where firms are price takers. Price takers are perfect competition market में होता है. अब जिसने ये सारे फीचर्स अलग अलग मार्केट के सही गेस करे थे, पैट योर सेल्फ, बिकॉज दिस मीन्स कि आपको मार्केट्स की डेफिनेशंस में, कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी क्लैरिटी है. So for question number 1, the correct option is C, a highly competitive market with slightly differentiated products. Question number 2, which of the following is not a feature of monopolistic competition? इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी विशेषता नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की? So let's read the options. A, numerous sellers. B, product differentiation. C, numerous buyers. D, homogeneous products. Numerous sellers होते हैं, numerous buyers होते हैं, product differentiation होती है. So automatically the option left is D. And homogeneous products किस में बेचे जाते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. इट्स ओनली इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं. मोनोपोलिस्टिक में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, और मोनोपोली में सिर्फ एक तरह के. सो द फीचर विच इज़ नॉट फॉर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज ऑप्शन नंबर डी.
Now, question number 3. Monopoly is a market structure characterized by all the following features except मोनोपोली मार्केट के इनमें से सारे फीचर्स में से कौन सा ऐसा फीचर है जो उसका नहीं है. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, द फर्म is a dominant seller of a good or service having no close substitutes होता है. The existence of high barriers to entry होता है. The firm enjoys economic profit even in the long run. Yes. The firm is the price taker. Is it? No. ये हमने अभी rather question number 1 में डिस्कस करा है that in perfect competition the firm is price taker. Not in monopoly. In monopoly, the firm is price maker. And why? Because he is the single seller. So monopoly market में जो इन सभी फीचर्स में से जो फीचर उसका नहीं है that is option number D. Good question. Question, what is the shaded region showing in the diagram? अब shaded region ये जो ग्रे पार्ट है वो पूछ रहे हैं कि ये क्या दर्शा रहा है. लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब इस आंसर को गेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज. लॉसेस कब होते हैं? जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है. नॉर्मल जब कॉस्ट और इनकम इक्वल होते हैं. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन यू अर्न मोर एंड यू स्पेंड लेस. एंड टाइप ऑफ AR, TR, MR we take is AR, AC, AR, AC, again AR, AC. लॉसेस में क्या होता है? आपका खर्चा, नुकसान, कॉस्ट ज़्यादा होती है. सो AR will be less than AC. In normal profits, both are equal. And in supernormal profits, what you earn, that is average revenue, is more than average cost. And if you have watched my previous video, तो उसमें मैंने सिखाया कि आपने AR और AC की कैलकुलेशन की कौन ज़्यादा है कौन कम है किस लाइन पर देखनी होती है? इस इक्विलिब्रियम लाइन पर. अब देखते हैं इस इक्विलिब्रियम लाइन पर AR तो यहाँ आ रहा है, ठीक है, एंड AC कहाँ आ रहा है? यहाँ पे. तो मतलब कि यहाँ पे AR इज़ ग्रेटर देन AC, राइट? एंड दिस इज़ हैपनिंग इन विच सिचुएशन? ओनली इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो जो इस डायग्राम में शेडेड पार्ट है वो और कुछ नहीं बल्कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहा है. वाई? बिकॉज हेयर AR इज़ ग्रेटर देन AC. बिकॉज जो आप कमा रहे हैं, जो आपकी आय है वो ज़्यादा है किससे? लागत से. Question number 5. When there is a price discrimination in the market, which of the following is not an advantage to customers? जब मार्केट में मोनोपोली के अंदर रादर जब कीमत को लेकर भेदभाव करा जाता है तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एडवांटेज, जो फ़ायदा नहीं है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए. सो पढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर ए, consumers may gain access to goods they may not have afforded before the discount. Yes, true. ये तो फ़ायदा ही होता है और ये जिसको डिग्रीज आती हैं वो ही आंसर कर सकता है. ये कौन सी डिग्री है? दिस इज़ डिग्री नंबर 2. डिग्री 2 में क्या होता है? जो सेलर होता है वो क्वांटिटीज़ को बेचने का मोटिव रखता है तो वो बल्क पे डिस्काउंट लगा देता है. सो बल्क में जब हम खरीदते हैं हमें चीज़ सस्ती मिलती है. तो ऑप्शन नंबर ए उसकी बात कर रहा है. देन कम्स दी ऑप्शन नंबर बी,
can help to reduce inequality of income as low income groups may gain access to the good. Yes, ये भी एक फ़ायदा है। और ये किस में आता है? डिग्री 3 में, जिसमें कस्टमर्स के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। लाइक द एग्जाम्पल आई हैव यूज्ड इन माई वीडियो वॉज, आई रिमेंबर कि किसी ट्रेड फेयर में एंट्री करते हैं तो बच्चों की टिकट अलग होती है, सीनियर सिटीजन्स की टिकट अलग होती है, एडल्ट्स की अलग होती है। उसी तरह से अलग अलग तरह के और भी ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि लो इनकम ग्रुप्स, हाई इनकम ग्रुप्स टू द बीपीएल कार्ड्स, राइट। तो उसमें आपको चीज़ें सस्ती महंगी मिलती हैं, तो ये उस चीज़ की बात हो रही है। सो अगेन ऑप्शन ए में भी कस्टमर्स को फ़ायदा है, ऑप्शन बी में भी। Then comes the option number C, appropriation of consumer surplus. This is degree number 1 in price discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज में जो हमने पहली डिग्री करी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सेलर होता है उसको वो पूरा कंज्यूमर सरप्लस ले लेता है, जितना भी कंज्यूमर का फ़ायदा होता है वो पूरा ले लेता है। तो ये पॉइंट है जिसमें कि कंज्यूमर का फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, दे आर इनकरेज टू कंज्यूम ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड्स। यस, ये भी एक फ़ायदा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज़ नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी। और ये वही समझ पाएगा अच्छे से जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तीनों डिग्रीज अच्छे से लॉजिकली समझी हुई हैं, जिसने डिग्री 1 में कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, डिग्री 2 और डिग्री 3 में फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, in which markets ARMR curves are flatter, elastic? अब सबसे पहले तो आई थिंक कि मैंने अपनी वीडियो में भी कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था इन मोनोपोलिस्टिक। तो उन्होंने पूछा कि ARMR कर्व्स फ्लैटर, इलास्टिक, लोच, खुले किस में बनते हैं, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में? मोनोपोली में कर्व्स बनते हैं ARMR के कुछ इस तरह, और मोनोपोलिस्टिक में बनते हैं कुछ इस तरह। तो इसे कहते हैं फ्लैटर, इसे कहते हैं स्टीपर। मोनोपोली में इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1 और मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। और इसका रीज़न इसका ये है कि मोनोपोली में हमारे पास गुड्स का ऑप्शन नहीं होता है, हमें वो जो गुड चाहिए होता है वो सिर्फ एक ही जना बेच रहा होता है। सो वी हैव अ काइंड ऑफ देयर इनइलास्टिक डिमांड। सो दैट्स वाई जो हमारे ARMR कर्व्स हैं वो थोड़े स्टीपर होते हैं, बेलोच होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। एंड वेयर एज इन कंपैरिजन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, लाइक वी टुक द एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट। अगर हमें एक टूथपेस्ट नहीं लेनी है तो हम और भी 5-6 तरह की ले सकते हैं। इसलिए जहाँ हमारी इलास्टिक डिमांड होती है वहाँ हमारे जो ARMR कर्व्स होते हैं वो फ्लैटर होते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन लुक सिंपल but it is a very important one, especially for the UGC NET people. उनको एक कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि मोनोपोली में ARMR कर्व स्टीपर होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही तरह का गुड एक ही जना बेचता है और कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। और ARMR कर्व्स मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर होते हैं, इलास्टिक होते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अगेन अ गुड क्वेश्चन। Question number 7, what is the diagram representing? ऐसा हमने अभी क्वेश्चन पीछे करा ही है। लॉसेस में आपको पता है AC ज़्यादा होता है AR से, AC is greater than AR. Here they both are equal, and in supernormal profits AR is greater than AC. और ये सब हम किस लाइन पे देखते हैं? इक्विलिब्रियम लाइन पे। तो अब इक्विलिब्रियम लाइन पे AC ऊपर आ रहा है और AR नीचे आ रहा है, मतलब कि AC इज़ ग्रेटर देन AR।
So clearly losses is the answer. What does monopoly market earn in long run? मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार आपकी मार्केट लॉन्ग रन में दीर्घकाल में क्या कमाती है? लॉसेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये सिंपल सा ही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। वाई? बिकॉज वो एक अकेला सेलर होता है जिसके पास वो गुड होता है, और उसके जैसा कोई सेलर नहीं होता जिसके पास वो गुड हो। तो वो लॉन्ग रन में आराम से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है बिकॉज ही हैज़ नो अदर कॉम्पिटिटर। इसके साथ साथ ये भी कर लेते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन लॉन्ग रन में क्या कमाती है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। मोनोपोली क्या कमाती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक क्या कमाती है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। What does monopolistic market earns in long run? Good, great. मैंने अभी पिछले में एक्सप्लेन कर दिया। Monopolistic market, just like perfect competition, earns only normal profits in long run. Question number 10. Excess capacity occurs in long run in monopolistic market because हमने ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कंसेप्ट करा है कि लॉन्ग रन में दीर्घकाल में इक्विलिब्रियम तो बन जाता है, बट वहाँ पे एक टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी, कि फर्म इक्विलिब्रियम में तो है बट उसके अंदर अभी भी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि वो और प्रोड्यूस कर सके। तो वो क्यों होता है? वाई? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC. Option number B, equilibrium does not occur at highest point of AC. AR, MR, MC. अब अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाने होते हैं, उसकी क्या सिचुएशन होती है? AR इज इक्वल टू AC। और मोनोपोलिस्टिक लॉन्ग रन में क्योंकि नॉर्मल अर्न करता है तो हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। उसके लिए अगर AR यहाँ आ रहा है, इसी पॉइंट पर हमें AC बनाना है। ये मैंने बना दिया AC, बट यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी किसे कहेंगे? ये जो मैं अलग चेस्ट लाइन से बना रही हूँ, इस शेडेड रीजन को। वाई? बिकॉज answer number here is option number A, because equilibrium does not occur at lowest point of AC. एफिशिएंसी ऑप्टिमम पॉइंट वहीं होता है इक्विलिब्रियम का जहाँ पर आपका मिनिमम कॉस्ट होती है। कॉस्ट किससे रिप्रेजेंट होती है? AC कर्व से। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम AC के मिनिमम पर नहीं है, सो यू आर नॉट इन एन ऑप्टिमम पॉइंट सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम तो है बट एक्सेस कैपेसिटी है और पोटेंशियल है कि आप और प्रोड्यूस करो क्योंकि कॉस्ट कम लगेगी। सो एक्सेस कैपेसिटी अकर्स ओनली इफ योर इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC. So these were the 10 questions which I thought of making together, summing up together. एंड जिनके भी ये 10 में से 10 ठीक हैं, डू कॉमेंट एंड टेल मी, बिकॉज इट रियली मीन्स कि आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट रादर परफेक्ट कंपटीशन भी आपके मेजर इनसाइड इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक सून विद more of such videos.